Beta, as you all know that we have already done with the journal part of this chapter, and from today onwards we will start how to prepare the ledger accounts of this chapter. ठीक, so सब तो पहला बेटा ਆਪਾਂ realization account prepare करना सिखांगे. For that we must know what is the format of realization account. ਅਸੀਂ realization account 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, right? So first of all let me tell you, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ revaluation account ਕੀਤਾ ਸੀ and you know ਕਿ revaluation ਦੀ ਜੋ nature ਆ ਉਹ nominal ਸੀ, same way ਬੇਟੇ realization account is also a nominal account, right? So ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ same concept follow ਹੋਊਗਾ, same rule follow ਹੋਊਗਾ. They debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains, right? So ਬੇਟਾ realization account ਦਾ ਇੱਕ proper format ਹੁੰਦਾ ਵਾ and ਉਹਦੇ accordingly ਹੀ ਆਪਾਂ question solve ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, right? So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, debit side balance sheet ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ assets ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ cross post ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? सो तुसी डेबिट साइड सारे एसेट्स क्रॉस पोस्ट कर लोगे बैलेंस शीट तो एंड यू विल बी राइटिंग all those assets individually. For example, balance sheet given a building, so you will write 2 building. Then balance sheet given a debtors, so you will write 2 debtors. Balance sheet given a stock, so you will write 2 stock. And furniture given होवे, you will be writing furniture also, ठीक है? So जो भी assets given होंगे बेटे वो लिखे जाएंगे and always remember one point, ठीक? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ assets ਲਿਖਣੇ ਆ ਆਪਣੀ balance sheet ਦੀ asset side ਤੋਂ cross post ਕਰਨੇ ਆ, always remember that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ assets ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ exclude ਕਰੋਗੇ. That is fictitious assets, because fictitious assets जो आ वो असी partners च distribute करने हुंदे आ, ठीक है? So fictitious assets च normally की आ जांदा वा P&L account दा balance given होवे asset side, right? P&L account दा debit balance हो गया, advertisement suspense account हो गया. वो fictitious assets तुसी cross post नहीं करने, इत्थे जो assets लिख रहे हो तो fictitious asset नहीं लिखिया करोगे. And you will also exclude cash account, right? So cash account भी बेटे इत्थे नहीं लिखोगे because cash account भी इस chapter च आपां separately बनाया करांगे, ठीक है? And एक और important point कि इस chapter च goodwill दा कोई special treatment नहीं हैगा, so goodwill भी तुसी बाकी assets की तरह इत्थे record कर लोगे, ठीक है? And केड़े assets exclude करने आ वो भी मैं थोनू दसदा. And बेटा आ जो भी information आ सानू कित्थों मिलूगी, the given balance sheet, right? So question च जो balance sheet given होया करूगी उस balance sheet चो तुसी आ सारे assets लिख लोगे, ठीक? And ਇਹਦੇ ਚ एक point जो तुसी होर याद रखना वो ये याद रखना कि debtors जो आ वो हमेशा तुसी gross value ते record करोगे. Gross value means before deducting PDD, मतलब debtors ਦੀ जो value provision for doubtful debts माइनस करन तो पहला बन रही आ, तुसी ओही वैल्यू ते डेटर्स रिकॉर्ड करने हुंदे आ, ठीक है? सो एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन पीडीडी भी गिवन होगी, तो तुसी बेटे वो पीडीडी दा की करोगे, तुसी ओनू ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक? सो ये पॉइंट आपां जर्नल च भी देखिया सीगा, राइट? सो डेटर्स ਨੂੰ ग्रॉस वैल्यू ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ. ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ. ਬੇਟੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ कि जो भी रिजर्व्स किसी एसेट से अगेंस्ट बनाई गई ने उन्होंने असी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट च क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? बस इन्ना याद रखियो, इन्हों सिर्फ आप इत्थे ट्रांसफर करना हुंदा, रियलाइज नहीं करवाते दी कोई भी वैल्यू, ठीक है?
किते भी कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं होगी इन्ना प्रोविजन एंड रिजर्व्स दे अगेंस्ट। ठीक है, ये तो इलावा बेटा डेप्रीसीएशन रिजर्व भी हो सकता, अगर किसी एसेट चो कोई डेप्रीसीएशन डिडक्ट की गई है तो डेप्रीसीएशन फंड भी तुसी इत्थे रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक, एंड कई बारी तुसी देखोगे कि इत्थे आपां वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी पोस्ट करया करांगे, रियलाइजेशन च ट्रांसफर करया करांगे। एंड तो WCR दे ना सर्टेन केसेस ने वो ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ मैं WCR नहीं लिख रही। ठीक है, सो ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ बेटा ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, for example sundry creditors, bills payable, outstanding expenses and so on। वो डिपेंड करता कि बैलेंस शीट च किहड़ियां लाइबिलिटीज गिवन ने, तो सब तो पहला तुसी यही क्रॉस पोस्ट करना हुंदा। ठीक है, एंड इहदे च मैं तुहानूं एक चीज़ दस दवां, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रिगार्डिंग बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहिंदी आ। सो बेटा इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो आ वो कोई फ्री रिजर्व नहीं हैगी। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ, द लाइबिलिटी टूवर्ड्स द इंप्लॉइज ऑफ द फर्म, राइट। सो ਉਹਨੂੰ भी तुसी ਇੱਥੇ ट्रांसफर करोगे, ये भी एक आउटसाइड लाइबिलिटी आ। एंड ये तो इलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुसी पार्टनर दी रिलेटिव दा लोन भी ਇੱਥੇ ट्रांसफर करोगे। ठीक है, पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन। ठीक, अगर किसी पार्टनर दे किसी रिलेटिव दा लोन गिवन आ बैलेंस शीट, वो भी तुसी अपनी क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। रिलेटिव लोन मीनस किसी पार्टनर दे ब्रदर दा लोन गिवन आ, किसी पार्टनर दी वाइफ दा लोन गिवन आ। ठीक है, वो भी इत्थे ट्रांसफर हो जाऊगा। सो ये भी बेटे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लो कि जिन्नियां भी तुसी लाइबिलिटीज इधर रिकॉर्ड करोगे की एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स कैपिटल्स, राइट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों एक्सक्लूड करने आ, बिकॉज पार्टनर दे कैपिटल अकाउंट असी सैपरेटली बनावांगे। ठीक है, वो तो इलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुसी पार्टनर दा लोन अकाउंट भी एक्सक्लूड करना। याद रखो बेटा पार्टनर दे रिलेटिव दा लोन तो असी इत्थे ट्रांसफर करया करांगे, बट पार्टनर दा लोन नहीं ट्रांसफर करना। ठीक है, सो असी सिर्फ पार्टनर दे रिलेटिव दा लोन ट्रांसफर करांगे। एंड वो तो इलावा असी की एक्सक्लूड करना हुंदा वा, फ्री रिजर्व्स, क्योंकि फ्री रिजर्व्स जो आ वो असी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो च डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक जनरल रिजर्व एंड मेनी अ टाइम्स WCR भी डिस्ट्रीब्यूट होया करूगी। ठीक है, एंड इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो असी इत्थे ट्रांसफर कीती आ, बिकॉज इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई फ्री रिजर्व नहीं हैगी। ठीक है बेटा, तुसी जो भी इंफॉर्मेशन लिखी आ दोनों साइड दिस इंफॉर्मेशन यू विल राइट फ्रॉम बैलेंस शीट। ठीक है बेटे, सो ये भी जो भी वैल्यूज तुसी लिखोगे, ये जो बैलेंस शीट होगी वो बैलेंस शीट जो तुसी वैल्यूज लिखोगे। उस तो बाद बेटे तुसी की करना, एडजस्टमेंट्स गिवन होणगियां रियलाइज्ड वैल्यू, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो बेटे जो भी लाइबिलिटीज पे होणगियां वो असी इस साइड रिकॉर्ड करया करांगे, एंड जो भी एसेट्स रियलाइज होणगे वो आपां इस साइड रिकॉर्ड करया करांगे। एंड तुसी दो चीज़ां याद रखणियां बेटे, अगर कोई लाइबिलिटी तुसी पे करवाई आ, एडजस्टमेंट गिवन आ कि लाइबिलिटी जिहड़ी आ ਉਹਦੇ अगेंस्ट फर्म ने कितनी अमाउंट पे की आ, एंड फर्म ने पे की आ। सो वी विल राइट टू बैंक in bracket the name of the liability। ठीक है, this is for liabilities paid। and beta what if liability has been taken over by a partner, तो तुसी की करोगे उस पार्टनर दा कैपिटल अकाउंट ओपन करोगे अगर लाइबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर की आ। ठीक है, एंड ये थोनों कित्थों पता लगूगी आ सारी इंफॉर्मेशन, फ्रॉम एडजस्टमेंट्स। सो बैलेंस शीट तो नीचे सर्टेन एडजस्टमेंट्स गिवन होणगियां, वो एडजस्टमेंट्स जो पता लगूगा कि तुसी टू बैंक लिखना या टू पार्टनर्स कैपिटल लिखना। ठीक है, सेम वे बेटे अगर एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं सो यू विल राइट बाय बैंक। ठीक है, सो बाय बैंक लिख के ब्रैकेट्स च तुसी लिख दोगे एसेट्स रियलाइज्ड, एंड नॉर्मली आपां की करदे हां बाय बैंक लिख के द नेम ऑफ द वेरियस एसेट्स जिन्नी जिन्नी वैल्यू ते रियलाइज हुंदे आ। ठीक है,
and we always record the realized value, not the book value. ਜਿੰਨੀ value ਤੇ asset actual ਚ realize ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ value record ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. And what if asset has been taken over by a partner? So you will be writing by partner's capital account and ਤੁਸੀਂ bracket ਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜੋ ਵੀ asset ਉਸ partner ਨੇ take over ਕੀਤਾ. And ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ realized values ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. And this will also you'll get from the adjustments. ਤੁਹਾਨੂੰ adjustments ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸੇਟ ਜੋ ਆ ਫਰਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਠੀਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਅਗਰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਫਰਮ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਫਰਮ ਜੋ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ we will write to partners capital account in brackets ਲਿਖਾਂਗੇ remuneration. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ expenses ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਾ ਆਪਾਂ already journal ਚ discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ questions ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ point ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ repeat ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ properly clear ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਹਾਲੇ just ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ firm expenses bear ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ and pay ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ to bank ਲਿਖਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, borne and paid by firm. ठीक है, अगर borne by firm सी and paid by partner हो जाए तो तुसी two partners capital लिख दिन्ने हो. ठीक है, अगर expense ही partner ने pay करता, अगर उन्होंने remuneration मिल रही सी तावी two partners capital ते remuneration credit करोगे. ठीक, सो इस तरीके दे points तुसी याद रखने हुंदे आ. So partners capital कदों लिखिया जांदा वा? When the expenses are to be borne by firm and paid by partner. ठीक, फिर एंट्री ये हो जाती है ना realization to partners capital. ठीक है, जो बोर्न कर दो उन्होंने डेबिट करना हुंदा, जो पे कर रहे उन्होंने क्रेडिट करना हुंदा. ठीक बेटा, सो इन्ना सब लिखन तो बाद what you will do is you will get the final answer. And अगर आंसर डेबिट साइड आ रहा तो प्रॉफिट हुंदा and उस प्रॉफिट ਨੂੰ ਅਸੀਂ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो च डिस्ट्रीब्यूट कर दिन्ने आ. ठीक है, लेट अस सपोज ए बी पार्टनर्स ने जो भी प्रॉफिट हो तुसी रेशियो च डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. एंड व्हाट इफ आंसर क्रेडिट साइड आ रहा सो दैट मीन्स लॉस आ रहा एंड लॉस ਨੂੰ ਵੀ पार्टनर्स च डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दी गिवन रेशियो. ठीक है, एंड विद दिस साडा जो रियलाइजेशन अकाउंट आ वो क्लोज हो जाया करो. ठीक है, सो आ सीगा बेटे रियलाइजेशन अकाउंट दा कॉन्सेप्ट. एंड ये तो बाद ना असी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने आ. सो रियलाइजेशन अकाउंट दे अंडर ही यू कैन राइट दी पॉइंट्स टू रिमेंबर और नोट्स कुछ भी तुसी लिख लो. एंड ये पॉइंट्स जो ने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तुहाडे लिए काफ़ी हेल्पफुल होणगे. सो बेटे सब तो पहला पॉइंट लिख लो, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स are transferred to respective partners capital account. Means इस chapter ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ fluctuating ਜਾਂ fixed capital account ਵਾਲਾ system नहीं होगा. In case balance sheet partner ਦੇ current account ਦੇ ਵੀ balances given ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ partner ਦੇ capital account ਚ transfer ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ. ठीक है, डिपेंड करदा कि डेबिट बैलेंसेस गिवन है या क्रेडिट बैलेंसेस ਉਹੀ साइड ਚ जो आ ਉਹ balances ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ post ਹੋ ਜਾया करनगे. ठीक है, सो बेटा उस तो बाद आ दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ. मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट होवे रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट और रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी देन असी की करना हुंदा. बेटे अगर एसेट दे रिगार्डिंगली क्वेश्चन साइलेंट आ मीनस एडजस्टमेंट्स च तुहानू कोई भी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन तो तुसी की करोगे. अगर तो एसेट टेंजिबल आ तो तुसी ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੋਗੇ. ਪਾਰ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ. ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਬੇਟੇ ਐਸੈਟ ਜੋ ਆ ਉਹ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ ਆ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਪੇਟੈਂਟਸ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ then you will assume that such asset has not realized any amount.
फिर तुसी ये अज्यूम कर लोगे कि वो एसेट जो आ उन्हें कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं करवाई, तो उन्होंने बस एज सच तुसी ट्रांसफर किया सी डेबिट साइड वो एसेट उत्थे लिख के छड़ दोगे, कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं करवाओगे। ठीक है। एंड सेम वे बेटे अगर क्वेश्चन लाइबिलिटीज की रियलाइजेशन के रिगार्डिंग कोई गल नहीं कर रहा कि लाइबिलिटी किस वैल्यू ते पे की गई आ, तो बेटा असी उस लाइबिलिटी नू इन फुल पे कराना ही कराना। एंड केड़ियां लाइबिलिटीज नू, जो लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज होणगियां। ठीक है। मतलब कोई भी इदां दी लाइबिलिटी दैट वी ओ टू एनी थर्ड पार्टी, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ अगर क्वेश्चन साइलेंट आ रिगार्डिंग देयर ट्रीटमेंट। ठीक है। सो आ वाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ ये तुसी रियलाइजेशन दे अंडर ही नोट कर लो। एंड जो तुसी क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन दीज पॉइंट्स विल श्योरली हेल्प यू। ठीक है। एंड जो टेंजिबल ते इनटेंजिबल वाला पॉइंट है ना बेटे, ये लास्ट ईयर ही चेंज होया। वो तो पहला तक तो अगर एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं सी गिवन होंदी तो एसेट्स रियलाइज ही नहीं सी करते, तो आप अज्यूम कर लेंदे सी कि कोई वैल्यू नहीं रियलाइज हुई। बट लास्ट ईयर जो आ इहदा ट्रीटमेंट चेंज किया गया। सो यही कहा गया अगर एसेट टेंजिबल आ तो पार ते श्योरली रियलाइज होगा, अगर इनटेंजिबल आ तो असी रियलाइज नहीं करवावांगे। ठीक है। सो अगर किसी बच्चे को ओल्ड एडिशन आ, पिछला एडिशन आ बुक का, तो वह वाला ट्रीटमेंट जो आ ना वो पिछले ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली किया होया, तो शायद आंसर्स नहीं मैच करनगे। ठीक है। सो आई विल एडवाइज यू क्योंकि यार ट्रीटमेंट चेंज हो चुका तो तुम न्यू एडिशन ही फॉलो करो। ठीक है। इस चैप्टर लिए सो बेटा लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। सो इस क्वेश्चन दे विच आपां रियलाइजेशन अकाउंट बनावांगे, लेजर अकाउंट बनावांगे, जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनियां। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। सो कैपिटल रेशो कितनी होगी 7:3। देन ऑन लाइबिलिटी साइड we have creditors, workmen compensation reserve, general reserve, Ramesh current account, capital account, so and so. So let me tell you beta, workmen compensation reserve तो आप partners च distribute करांगे because नीचे कोई भी adjustment नहीं हैगी workmen compensation दे related, and general reserve भी असी partners च distribute करांगे, and रमेश करंट अकाउंट जो आ ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एज सच ट्रांसफर हो जाऊगा, एंड कैपिटल्स तो कैपिटल अकाउंट ही पोस्ट करते हैं। मीनस जो असी रियलाइजेशन अकाउंट बनावांगे तो साडे कोले सिर्फ इक्को ही लाइबिलिटी आ क्रेडिटर्स जिन्हों आपां ट्रांसफर करांगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। उस तो बाद एज आई टोल्ड यू बैंक अकाउंट नूं तुसीं नहीं रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करना, उमेश का करंट अकाउंट भी रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं करना। So these are the assets which will be transferred in the realization account. So आ सारे assets पहला realization account transfer करांगे, फिर ਆਪਾਂ आ वालियां liabilities transfer करांगे। So normally ਆਪਾਂ की करते हैं कि असी adjustments read करते हैं पहला, फिर ਆਪਾਂ question ਵੱਲ move करते हैं ना। बट मैं डीजो च बच्चों ਨੂੰ कह रही ਹੁੰਦੀ ਆ बेटा पहला balance sheet close करनी आ। लाइक जो भी मैं थोड़ा एसेट्स दस रही है सारे एसेट्स रियलाइजेशन ट्रांसफर हो जाएंगे, आ लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, बाकी सब का भी ट्रीटमेंट में दसता कि आ सारिया चीज़ा जो ने पार्टनर्स कैपिटल दे विच ट्रांसफर होणगियां, आ भी पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर होगा, एंड जो बैंक आ इहदे लिए आपां सैपरेटली बैंक अकाउंट बनावांगे। ठीक है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन च उन्होंने पूछा कि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाओ, तो सिर्फ असी रियलाइजेशन अकाउंट बनावांगे, and these are the adjustments we have for realization account. चलो बेटा let us prepare the realization account. So बेटा first of all we will post the assets and liabilities. So मैं assets transfer कर रही हूँ except बैंक and the current account। तो asset side देखो बेटा बैंक का ट्रांसफर नहीं करांगे, तो सब तो पहला डेटर्स ने 2,40,000 डेटर्स ट्रांसफर कर लांगे। Then we have stock 1,30,000 स्टॉक भी ट्रांसफर करांगे। फर्नीचर 2 लाख फर्नीचर भी ट्रांसफर कर लिया। देन वी हैव मशीनरी 9,30,000। ओके। उमेश का करंट अकाउंट असी रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं करना। वो तो बाद लाइबिलिटी साइड वी विल ट्रांसफर ओनली क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है 1,70,000। रेस्ट में थोनों ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि कैपिटल अकाउंट जाएंगे तो मैं ट्रांसफर नहीं करती। देन देखो बेटा मैं एडजस्टमेंट्स रीड कर रही हाँ। सो दे हैव गिवन दैट रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। सो अगर रमेश ने स्टॉक टेक ओवर किया सो आई विल ओपन रमेश कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट्स आई विल राइट स्टॉक। सो कह रहे हैं 50% स्टॉक उन्हें एक्वायर किया। स्टॉक की वैल्यू कितनी आ 130। अगर उन्हें 50% एक्वायर किया मीन 65,000 आ बुक वैल्यू आ। बट उन्हें 10,000 घट ते एक्वायर किया ना 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। सो इट मीन्स किस वैल्यू ते उन्हें स्टॉक एक्वायर किया 55,000। ठीक है फिर रिमेनिंग स्टॉक बारे कुछ भी मैंशनड नहीं हैगा। सो वी विल अज्यूम कि रिमेनिंग स्टॉक जो आ वो पूरी अमाउंट से ही रियलाइज हो गया होगा। सो आई हैव ओपन बैंक ते मैं इस तरीके नाल लिख रही हाँ रिमेनिंग स्टॉक कितना वा 65,000। सो इट मीन्स रिमेनिंग स्टॉक जो आ वो एट पार रियलाइज हो गया। ठीक है वो तो बाद लिखा होया that furniture was taken over by उमेश and machinery sell हो गई 4,50,000 दी। सो पहला मशीनरी सेल करा दा 4,50,000। सो बार बार बैंक अकाउंट लिखन की बजाय मैं एक बारी बैंक अकाउंट लिखा तो जो एसेट्स रियलाइज हो रहे इकट्ठे रिकॉर्ड करते। उस तो बाद फर्नीचर उमेश ने टेक ओवर किया। सो आई एम राइटिंग बाय उमेश कैपिटल इन ब्रैकेट्स मेंशन कर रही हाँ फर्नीचर and the value is 50,000. Next, creditors were paid in full. So here we will write to bank, brackets लिख दांगे creditors सारी पेमेंट की है so 1,70,000. Then एक unrecorded bill for repairs सीगा which was settled for 140. So मैं की कर रही हाँ separately लिखन की बजाय एक बार च लिख दिनी हाँ creditors 1,70,000 and the unrecorded bill that is bills payable जिन्नी realized value आ बेटा वही record करनी आ 140. So this is 2,10,000 2,10,000 no 3,10,000 and this is 5,15,000. Now बेटा calculate स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी गिवन आ बेटा 1,30,000. देन उन्होंने सानू किया कि जो 50% स्टॉक आ 50% स्टॉक कितना हो गया 65 एंड बाकी 50% बच गया जिदे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हैगी। तो जो 65 दा स्टॉक आ इट हैज बीन टेकन बाय रमेश एट अ वैल्यू विच इज लेस देन दिस वैल्यू। ठीक है बाय 10,000 जो ये तो 10,000 घट आ वैल्यू। सो मैं ओदे चो 10,000 माइनस किया। सो आई गॉट द रियलाइज्ड वैल्यू और द वैल्यू एट विच रमेश एक्वायर्ड द स्टॉक दैट इज 55,000। सो मैं इस वैल्यू ते रिकॉर्ड करूंगी एंड क्योंकि बैलेंस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा होया तो वी विल अज्यूम दैट दिस बैलेंस हैज बीन रियलाइज्ड एट पार। तो इनू आपां बाय बैंक च टोटल वैल्यू ते ही रिकॉर्ड किया। ओके इस क्वेश्चन वी आर गेटिंग लॉस तो लॉस आप पार्टनर्स च डिस्ट्रीब्यूट करना हुंदा वा रमेश उमेश इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड मैं लॉस वैल्यू जो आंसर आ रहा बेटा आई एम गेटिंग 10,20,000 एंड ये वैल्यू साडी टैली नहीं हो रही बुक के आंसर दे नाल एंड उहदा मैं तुहानू रीजन दस रही हूँ बेटा हले इनू नोट ना करियो। अगर मैं कंपेयर करा इस क्वेश्चन ओल्ड एडिशन नाल तो दे हैव मिस्ड वन एडजस्टमेंट दैट इज रिगार्डिंग डेटर्स। सो मैं वो एड ऑन करवा रही हूँ बेटा दैट डेटर्स वर realized at a discount of 5%. ठीक है सो अगर असी चेक करिए सो स्टॉक फर्नीचर एंड मशीनरी साडे टेंजिबल एसेट्स सीगे ना ते ये टेंजिबल एसेट्स जेडे आ ये तो साडे रियलाइज हो गए। ठीक है
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੇਟਰਸ ਆ, ਡੇਟਰਸ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਰ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ टाइपिंग एरर आ या आई कैन से एक पब्लिशिंग एरर आ। सो हेंस डेटर्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡੇਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਐਟ ਅ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫ 5%, ਸੋ ਡੇਟਰਸ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ? 28,000, 1,43,000। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ 10,20,000 ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 2,28,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੈਂਸ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਐਂਡ ਇਹ ਆਂਸਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਯੈਸ ਬੇਟਾ, देयर इज अ प्रिंटिंग एरर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं ओल्ड एडिशन ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। बट ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਡੇਟਰਸ ਵਾਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਟਰਸ ਵਾਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, then only I am getting the correct answer, ठीक है। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि तुसी आ वाला पॉइंट जिहड़ा वा उहनू ऐड कर लो डेटर्स वाला एंड देन यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर, उहनू तुसी रेशो च डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2,37,600। सो इफ यू वांट कि बुक दे नाल आंसर टैली करना वा तो जो एडजस्टमेंट प्रिंट नहीं हुई हुई नवी एडिशन दे विच वो एडजस्टमेंट तुसी ऐड ऑन कर लो, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर दैट इज गिवन इन द बुक। अगर तुहानू लग रहा कि नहीं मैम इदां ही करांगे, फिर तुसी डेटर्स वाले पॉइंट तो बिना जो साडा आंसर आ रहा सीगा वो लिखोगे, ठीक है। तो बेटा लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। Pradeep and Rajesh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. They decided to dissolve their partnership. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off liabilities, and he was paid 1,000 as commission for his services. The financial position of the firm on 31st March was as follows. So here we have creditors Mrs. Pradeep's loan and investment fluctuation fund, जो बेटे अपन realization account transfer करांगे, partners का loan and capital account transfer नहीं करांगे। उस तो बाद asset side given a building investment debtors, debtors gross value थे and PDD opposite side, ठीक है। ये point याद रखना। Then we have bills receivable and goodwill। अपा बेटा बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना एंड P&L अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं करना। उस तो बाद एडजस्टमेंट्स ने दैट प्रदीप अग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन, ओके। सो प्रदीप ने अपनी वाइफ का लोन एक्वायर कर लिया। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स यूज किए गए टू पे 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। एन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000, सो इन्वेस्टमेंट राजेश ने एक्वायर कर ली। बिल्डिंग रियलाइज्ड 152। उस तो बाद देखो बेटा रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो 75% दे रह गए सी ओदे रिगार्डिंग भी पॉइंट गिवन आ, वर टू बी पेड आफ्टर 2 months दैट वर पेड immediately at 10% discount. This is again a very important adjustment कि साडे कोले 2 months का टाइम पीरियड सीगा बट इमीडिएटली पे किते आ 10% डिस्काउंट ते तां असीं वो 2 months दे अकॉर्डिंगली डिस्काउंट कैलकुलेट कर लांगे, ठीक है। देन बेटा बिल्स रिसीवेबल सेटल किते गए एट अ लॉस ऑफ 1400, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 2500 दे। सो लेट अस प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा सब तो पहला सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लेने आ। So you can check the question from your books. First of all, building transfer करांगे 1,20,000, then investment 30,600, then debtors at gross value
दैट इज 34,000 एंड जो PDD आ वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करांगे, अमाउंट इज 4,000. Then we have bills receivable 37,400. बैंक एंड P&L अकाउंट इधर ट्रांसफर नहीं करांगे. Then we have goodwill. Goodwill ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ट्रांसफर कर दिया because there is no special treatment of goodwill in this chapter. Then liabilities ट्रांसफर कर देंगे by creditors 80,000 by Mrs. Pradeep's loan. So बेटा रिलेटिव दा लोन का ट्रांसफर कर दें, पार्टनर दा लोन नहीं ट्रांसफर कर दे. So Mrs. Pradeep's loan is 40,000. राजेश का लोन ट्रांसफर नहीं करांगे एंड IFR भी अपा ट्रांसफर कर दें, अमाउंट इज 8,000. ठीक है. सो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए आ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ वन बाय वन. First is Pradeep agreed to pay off his wife's loan. So here we will write to Pradeep. You have to write to Pradeep's capital in full, wife's loan. Okay. And Pradeep the wife the loan amount कितनी है 40,000. ठीक है. वो खुद सेटल कर रहे हैं. Next is half of the debtors realized 12,000. So I will write by bank and मैं इस तरीके नाल open कर लेनी है. Half of the debtors realized 12,000. So debtors किस amount दे 34 है ना. Means 17,000 ਦੇ debtors ने realize ਕੀਤਾ 12,000 and remaining debtors जो आ ਉਹ ਆਪਾਂ creditors ਦੇ against set off ਕੀਤੇ ਆ. देखो बेटा मैं एडजस्टमेंट जी थोड़ी जी इलैबोरेट कर रही हाँ. क्रेडिटर्स की अमाउंट आ 80,000 एंड डेटर्स की अमाउंट आ 34,000. क्वेश्चन गिवन आ that half debtors are given to 25% of the creditors. अगर मैं creditors ਨੂੰ bifurcate करदा 25% means 20,000 and remaining creditors जो बच गए that are of 60,000. So जो 20,000 ਦੇ creditors ने वो settle हो गए by taking these debtors ना. सो जो असी एसेट किसी लाइबिलिटी ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ लिए ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक. एंड जो रिमेनिंग डेटर्स सीगे ਉਹਦੇ रिगार्डिंग तो रियलाइज्ड वैल्यू गिवन ही सीगी that these debtors realized 12,000. सो आ 12,000 असी रिकॉर्ड कर चुके हैं बाय बैंक करके. गॉट इट. ठीक है बेटा. सो दिस वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड आ वाला पार्ट असी रिकॉर्ड ही नहीं करना. Now the twist is regarding remaining creditors. So बेटा मैं C और D पार्ट स्किप करके पहला थोनों E एडजस्टमेंट दस रही हाँ कि remaining creditors दा की होया. remaining creditors जेडे आ ओदी पेमेंट हुई आ आफ्टर 10% डिस्काउंट. एंड बेटा जो टाइम पीरियड गिवन हुंदा ना तो तुसी हमेशा डिस्काउंट जो आ वो टाइम पीरियड दे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे. देखो मैं डिस्काउंट थोनों कैलकुलेट करवा रही हाँ. 60,000 10% is the rate and because साडे कोले 2 months ਦਾ टाइम पीरियड सीगा बट असी 2 months पहला क्रेडिटर्स पे करते तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली डिस्काउंट कितना बन गया 2 months से अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो एंड टेल मी बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट. दिस इज 1,000. सो इट मीन्स जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स आ वो 1,000 ਦੇ डिस्काउंट तो बाद सेटल हो रहे आ. तो किस वैल्यू ते सेटल करांगे 59,000. So this side we will write to bank creditors and the amount is 59,000. Okay. Next देखो बेटा
हुण मैं सी और डी एडजस्टमेंट करवा रही हाँ। इन्वेस्टमेंट सेल की राजेश ने, सो हियर आई विल राइट बाय राजेश इन्वेस्टमेंट। किस वैल्यू ते इन्वेस्टमेंट सेल की 27,000। बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000, so I will write building 1,52,000। ठीक है, सो मैं बिल्डिंग भी मार्क कर लें, इधरों दी असी क्रेडिटर्स एंड मिसेस लोन भी पे कर चुके हैं। ओके, देन एफ पॉइंट बिल्स रिसीवेबल सेटल होया एट अ लॉस ऑफ 1400। सो बेटा 1400 माइनस करांगे 37,400 चो वी विल गेट 36,000, राइट। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन आर 2,500। हियर आई विल राइट, कुछ भी स्टेट नहीं किया होया, सो वी विल अज्यूम that realization expenses are borne by firm and paid by firm। ठीक है, हुण बेटा वैल्यूज का टोटल कर लो एंड कैलकुलेट द आंसर। 61,500 here, 2 lakh here। so बेटा they have also given कि ਆਪਾਂ एक पार्टनर ਨੂੰ कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं 1000 ਦੀ। किनू प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रदीप। so here I will write to Pradeep commission, that is 1000। उस तो बाद बेटा तुसी आंसर कैलकुलेट करोगे and you will get profit in this question, and वो प्रॉफिट तुसी प्रदीप एंड राजेश डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। The amount of profit is 30,500. Ratio is 3:2, 18,300 and 12,200। Okay,